Hello dear 9th class students, today we are going to start your Behive books chapter 3rd. The name of the chapter is The Little Girl by Catherine Mansfield, and this is very interesting chapter. You will come to know how the girl overcomes her fear from her father. Now open the text. So dear students, now without passing the time we shall come to the point straightly. तो हम बिफोर यू रीड की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हो जब आप छोटे थे, और क्या आप ये जानते हो कि वो कभी कभी अपसेट हो जाया करते हैं बच्चों पेरेंट्स। तो आप जानते हो कि उनका अपसेट होने का रीज़न क्या है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट अ लिटिल गर्ल जो कि अपने फादर से डरती है पूरी तरह से, और इस तरह का डर हर एक घर में हुआ करता है। शायद आपके घर में भी, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी था। ठीक है। तो अब हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard of the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." Kezia mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, move slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, father." Now I am going to explain this to you in Hindi. तो एक लिटिल गर्ल है जो कि डरती है, लेकिन उस डर को अवॉइड भी करती है। हर एक सुबह उसके फादर काम पर जाने से पहले उसके कमरे में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस देते हैं, जिसका रेस्पॉन्स वो क्या देती है, "गुड बाय फादर।" और फिर उसके बाद वो लड़की थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है जैसे जैसे वो सुनती है कि उसके फादर के व्हीकल का जो शोर है रोड पर वो और दूर होता जा रहा है। इसका मतलब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। शाम में जब वो घर आती हैं तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती है, सीढ़ियों के पास में, और उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती है। वो कहते हैं, "जाओ मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। क्या पेपर आ गया? माँ जाओ देखो कि क्या पेपर्स आ गए। जाओ मेरे स्लीपर्स लाओ।" तो केजिया जो है, उस केजिया को उसकी मदर आवाज़ देती है, "केजिया आओ, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो अपने पापा के जूते उतार दो, शूज़ टर्न ऑफ कर दो।" तो धीमे धीमे वो जो लड़की है वो स्टेयर्स की तरफ आती है, हॉल की तरफ आती है, फिर दरवाजे को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है रूम में। और इस समय तक पापा अपना चश्मा पहन चुके होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं और लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो उससे पूछते हैं, कहते हैं, "जल्दी करो, ये जूते निकालो, तुम एक अच्छी लड़की बनी या नहीं?" तो लड़की अटकते हुए बोलती है, "मैं नहीं जानती पापा।" नाउ द नेक्स्ट प्लीज। "You don't know. If you stutter like that, stutter it means हकलाना, रुक कर बोलना, like that, mother will have to take to you to the doctor." She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly with "What's the matter?
What are you looking so raised about, mother? I wish you taught this girl not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleep suddenly and snoring. Now I'm going to explain you this page in Hindi. तो पापा उसको कॉपी करते हुए कहते हैं, तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि तुम अच्छी लड़की बनी हो या नहीं? अगर तुम इस तरह से हकलाओगी या अटक कर बोलोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। लड़की मन में ही सोचती है कि वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ अटकती नहीं है, बात करती में रुकती नहीं है, उसने बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन फादर के सामने उसे पता नहीं क्या हो जाता है, उसे सारे जो शब्द हैं वो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं पूरी तरह से। क्या बात है, तुम इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही हो? मदर ने उससे पूछा। तब उसने जवाब दिया, माँ मैं चाहती हूँ उसके फादर ने बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को आत्महत्या के कगार पर ना पहुँचे, इसको शिक्षा दो, इसको सिखाओ कि आत्महत्या के कगार पर ना पहुँचे। यहाँ पर ये कीजिया है, कीजिया जाओ मेरी चाय को टेबल पर रख दो। और वो कीजिया को बहुत बड़ी लगते हैं अपने पापा, उनके हैंड्स, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका माउथ। जब वो कुछ भी खाने के लिए मुंह को खोलते हैं वो उनके बारे में सोचती है कि वो एक राक्षस की तरह दिखाई देते हैं। संडे के आफ्टरनून में ग्रैंडमदर ने उसे ड्राइंग रूम में भेज दिया ताकि वो अपने मम्मी पापा से बात कर सके। लेकिन जो छोटी लड़की है उसे अपनी माँ रीडिंग करती हुई दिखाई देती हैं। फादर उसे लेटे हुए दिखाई देते हैं सोफ़ा पर, जिन्होंने अपने फेस पर हैंकरचीफ ढक रखा है और एक कुशन ले रखा है, और वो बड़े आराम से शांति से खर्राटे, स्नोरिंग इट मीन्स खर्राटे लेते हुए सोना। नाउ टर्न द पेज। पेज टर्न करने के पहले स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हो व्हाट इज़ द सीन हियर। लड़की बाहर स्टेयर केस पर खड़ी हुई है, मदर उसकी रीडिंग कर रही हैं, फादर सोफ़ा पर। जिस तरह से यहाँ ऊपर डिस्क्राइब किया गया उस तरह से फादर यहाँ पर सो रहे हैं। ओके, शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pink cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Laboriously, मेहनत से, laboriously, with working hard, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill with it with, that was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her face, then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house.
Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants cautioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you did not see some papers on a table in our room. Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. To and fro, it means idhar udhar घूमना. Hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the girl. Did you do that? No. She whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed. Now I am going to explain you this in Hindi. तो लड़की नीचे ड्राइंग रूम में आ चुकी है और वो स्टूल पर बैठी हुई है. वो अपने फादर की तरफ देख रही है जब तक वो जग नहीं जाते. और पैर फैलाते हुए एक समय नहीं पूछता तब तक वो उसकी ओर देखते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह से घूरो मत कीजिए मुझे, और तुम इस समय एक ब्राउन आउल की तरह, भूरे उल्लू की तरह से लग रही हो. एक दिन जब लड़की को ठंड की वजह से उसे ज़ुकाम हो गया था और उसे घर के अंदर थी वो लड़की, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक और उसे एक गिफ्ट बनाना चाहिए. गिफ्ट में पिन कुशन बनाना चाहिए, एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. तो लड़की ने बड़ी ही मेहनत से डबल कॉटन करते हुए 3 तरफ टाँके लगाए. लेकिन अब इसमें भरा क्या जाए, ये एक क्वेश्चन था. दादी माँ बाहर बगीचे में थी. वो अपनी माँ के सोने का जो कमरा था उसमें कतरनों की तलाश कर रही थी. उसमें भरने के लिए बिस्तर के पास टेबल पर उसे बहुत सारे सुंदर कागज़ों की शीट दिखाई दी. उसने उन्हें इकट्ठा किया, उनको फाड़ कर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने केस में उन्हें ठूस कर उसने चौथी साइड को सिल दिया. उस रात घर में खूब शोर शराबा हुआ क्योंकि फादर के इम्पोर्टेंट स्पीच के जो पेपर्स थे वो खो गए थे. सारे कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से पूछा गया. फाइनली मदर केजिया के रूम में आई और केजिया से पूछा, केजिया क्या तुमने पापा के कुछ पेपर्स को देखा है टेबल पर? ओह यस, उसने जवाब दिया. मैंने तो उन्हें फाड़ कर अपने सरप्राइज़ के लिए यूज़ कर लिया. मदर चीखी, क्या? नीचे आओ. इसी समय नीचे आओ ड्राइंग रूम में. और उसे नीचे लाया गया जहाँ पर फादर इधर उधर घूम रहे थे, अपने हाथ को कमर पर रखकर. अच्छा, उन्होंने तीखेपन से पूछा. मदर ने बताया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुक गए और लड़की को घूर घूर कर देखने लगे. क्या तुमने ऐसा किया? ना. मदर गो अप टू हर रूम. माँ ने कहा जाओ अपने कमरे में जाओ और उसे नीचे लेकर आओ. जो कुछ तुमने किया है और देखो. इसी समय जाओ और सो जाओ. Now the next place. Trying too much to explain, she lay
in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms, her in a shawl, little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the little child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed it means सिसकियाँ भर के रोना सिसकते हुए. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, men round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the nose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different short of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all in the daytime. Now I am going to explain you this piece in Hindi. तो बहुत ज़्यादा रोते हुए एक्सप्लेन कर रही थी. वो लेट गई अपने अंधेरे कमरे में और शाम तक, अब शाम की जो लाइट है वो हो चुकी थी, शाम का अंधेरा हो चुका था और लड़की फ्लोर पर सैड पैटर्न्स बना रही थी. और ठीक उसी समय उसके फादर उसके कमरे में आए, एक रूलर हाथ में लेते हुए. मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा. तब कीजिया चिल्लाई, नहीं नहीं, और वो बेड क्लॉथ्स के अंदर छिप गई. उन्होंने उस बेड क्लॉथ्स को एक तरफ रख दिया और उस ऑर्डर देते हुए उससे बोले, सिट अप, बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर निकालो. तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उन्हें ना टच करो. लेकिन ये आपका बर्थडे था पिताजी, फादर. लेकिन डंडा फिर भी उसकी हथेलियों पर पड़ा, उसकी गुलाबी हथेलियों पर. घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा और उसे झूलने वाली कुर्सी पर वो झुलाती रहीं, छोटी बच्ची उनसे चिपक गई और वो उसकी पीठ पर थपथपा रही थी और उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी कि, और लड़की सोच रही थी कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है. और उस रात वो लड़की बहुत ज़्यादा अपसेट रही.
तब ग्रैंडमदर ने उसे समझाया, ये लो एक साफ हैंकी लो, अपनी नाक को साफ करो, सोने जाओ। वो उसे थपथपाती रहीं और जो भी कुछ हुआ सुबह तक उसके बारे में भूल जाओ। मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इस समय वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। लेकिन लड़की कभी भी नहीं भूली। अगले समय जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को अपनी बैग अपने पीछे छुपा लिया और उसके गालों तक एक रेड कलर दौड़ गया। लड़की अब अपने फादर को कंपेयर करती है। अगले मकान में मैकडोनाल्ड का परिवार रहता है। उनके 5 बच्चे थे। दीवार में एक छेद के पास देखते हुए छोटी लड़की ने उन्हें शाम के समय एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हुए देखा है। पिता सबसे छोटे बच्चे मैव को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। 2 छोटी लड़कियां उसके कोट के जेबों को पकड़ते हुए फूलों की क्यारियों में चारों ओर दौड़ रही थी, हंसी के झूले झूलते हुए। एक बार उसने लड़कों को उन पर पानी छिड़कने वाली नली को घुमाते हुए पाइप से पानी छिड़कते हुए देखा था और हंसते हुए उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की थी। तब उसने ये डिसाइड किया कि अलग अलग तरह के पिता होते हैं। अचानक ही एक दिन माँ बीमार हो गई और माँ और दादी माँ को अस्पताल जाना पड़ा। लिटिल गर्ल घर पर अकेली रह गई, उसके कुक एलिस के साथ में। दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, पर वो अचानक डर गई। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज। You will be quite happy to see the end of the chapter. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Now I am going to explain you this page in Hindi. लेकिन एलिस ने उसे बेड पर लिटा दिया और वो डर गई। लेकिन उसने फिर पूछा कि अगर मुझे नाइटमेयर ड्रीम, अगर मुझे सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। मैं अक्सर सपनों में जग जाया करती हूँ, मुझे सपने आते हैं अक्सर, और ग्रानी तो मुझे अपने रूम में अपने बेड पर ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती और ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ फुसफुसाहट सी लगती है। तो कुक ने तुरंत कहा, बेटा बच्चे तुम सो जाओ, उसके सॉक्स उतारते हुए, और तुम चिल्लाना मत, अपने पापा को मत जगाना। Now come to the next page, page number 37. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Oh, the butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with a butcher's smile all about her. It seemed she crept
close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father, tired out. He slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stood suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. Can hear it going. What a big heart you have got, father dear. Now I am going to explain you this page in Hindi. लेकिन लड़की को पुराना सपना फिर से आ गया. बूचर, उसके हाथ में नाइफ, एक रस्सी, जो उसके पास उसकी तरफ बढ़ रहा है और हंस रहा है. बड़ी भयंकर हंसी हंस रहा है, ड्रेडफुल, खतरनाक हंसी. जब वो हिल नहीं सकती, केवल खड़ी है, चीख रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो कांपती हुई जाग गई. फादर उसके बेड के किनारे थे. उनके हाथ में एक कैंडल थी. उन्होंने पूछा, क्या है, क्या हो गया? ओह, एक कसाई, एक छुरी, मुझे दादी माँ चाहिए. उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुके और बच्ची को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे एक वहाँ से गैलरी से निकलते हुए अपने बेडरूम में ले गए. एक न्यूज़पेपर बेड पर रखा हुआ था. उन्होंने न्यूज़पेपर को अलग रख दिया और बड़ी ही केयरफुली लड़की को लिटा दिया अपनी साइड से. लड़की अभी भी आधी नींद में थी और जो बुचर की स्माइल थी वो अभी भी उसे दिख रही थी. वो डरी हुई थी. कसाई का चेहरा मुस्कुराता हुआ सा लग रहा था. वो रेंगकर उसके नज़दीक पहुंच गए और उसका सर अपनी हाथों में छुपा लिया उसके फादर ने, और उसने बड़ी ही टाइटली अपने फादर की शर्ट को पकड़ लिया. अब अंधेरे का कोई डर नहीं. अब वो लेटी हुई थी और यहाँ अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, गेट देम वार्म, उन्हें गर्म करो, फादर ने कहा. थके हुए होने के कारण वो छोटी लड़की से भी पहले सो गए. बड़ी फनी सी फीलिंग आ रही थी. बेचारे पापा, वो अब इतने भी बड़े नहीं लग रहे थे इस सब के बाद भी. और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है. वह दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे, लेकिन ये कठोरता अच्छी थी और उन्हें प्रतिदिन सख्त मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो अधिक थक जाते हैं और वो मिस्टर मैकडोनाल्ड कभी भी नहीं बन सकते. उनके लिखे हुए कुछ पेपर्स जिनको मैंने फाड़ डाला था अचानक ही, तो इस तरह अचानक ही लड़की ने आह भरी. पापा ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने जवाब दिया, दूसरा सपना. तो लिटिल गर्ल ने कहा, मेरा सिर आपके दिल पर है और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ. आपका दिल कितना बड़ा है, माय डियर फादर. और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. दिस चैप्टर कम्स टू इट्स एंड. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर listening me. Thank you very much.